Dear students, today we are going to start new chapter, indefinite integration. In this chapter, first you have to study some important integral formulae. Now see the important formulae for the integration chapter. So first one, integral of x raised to n dx equal x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. Integral of 1 by root x dx equal to 2 root x plus c. Integral of a constant k into dx equal to kx plus c. Integral of a raised to x dx a raised to x upon log a plus c. Integral of e raised to x dx e raised to x plus c. Sixth one, integral of 1 upon x dx equal to log of x plus c, or you can say log of mod of x plus c. Integral of sin x dx equal to minus cos x plus c, and integral of cos x dx equal to sin x plus c. Integral of tan x dx equal to log of sec x plus c or log of mod of sec x plus c. Integral of cot x dx log of sin x plus c or log mod sin x plus c. You can write any one, bracket or modulus. Integral of sec x dx equal to log of sec x plus tan x plus c or log of mod of sec x plus tan x plus c, and it's another formula in another form, log tan x by 2 plus pi by 4 plus c, log of tan x by 2 plus pi by 4 plus c. And integral of cosec x dx equal log cosec x minus cot x plus c equal to log of tan x by 2 plus c. 13th, integral of sec square x dx equal tan x plus c. Integral of cosec square x dx equals minus cot x plus c. Integral of sec x into tan x dx equals sec x plus c. Integral of cosec x into cot x dx equal to minus cosec x plus c. Integral of 1 upon root 1 minus x square dx equals sin inverse x plus c. Integral of minus 1 upon under root 1 minus x square dx equal cos inverse x plus c. In these two formulae, only one difference. If we write here only 1 upon under root 1 minus x square dx, so you can say it is minus cos inverse x plus c also. 19th, integral of 1 upon 1 plus x square dx equal tan inverse x plus c. 20th, minus 1 upon 1 plus x square dx equal to cot inverse x plus c. And integral of 1 upon x into root x square minus 1 dx equals sec square x plus c. Integral of minus 1 upon x into root x square minus 1 dx equal cosec inverse x plus c. Now see some more formulae. Integral of 1 upon x square plus a square into dx equal 1 by a tan inverse x upon a plus c. Integral of 1 upon x square minus a square into dx equals 1 by a log x minus a upon x plus a plus c. 25th, integral of 1 upon a square minus x square dx equals 1 by 2a log of a plus x upon a minus x plus c. Integral of 1 upon root a square minus x square dx equal to sin inverse x by a plus c. Integral of 1 upon root x square minus a square dx equals log mod of x plus root x square minus a square plus c. And 28th,
इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू log of mod of x plus root x square plus a square plus c. Integral of 1 upon x root x square minus a square dx equals 1 by a sec inverse x upon a plus c. Integral of root a square minus x square dx equal x by 2 into root a square minus x square plus a square by 2 into sin inverse x upon a plus c. Integral of root a square plus x square dx equals x by 2 root a square plus x square plus a square upon 2 log of x plus root x square plus a square in the bracket or log of mod of x plus root x square plus a square modulus closed plus c. And 32th, integral of root x square minus a square dx equals x by 2 into root x square minus a square minus a square upon 2 log of mod of x plus root x square minus a square or log of bracket x square x plus root x square minus a square plus c. These are your important formulae for the chapter integration. So in all these formulae, c plus c is important term, and plus c here is known as constant of integration for all the formulae. So dear students, first you have to revise and you have to learn all these formulae properly, and then you have to start integration chapter. And these formulae are very important for any competitive exams or for the board exams also. Now we start chapter 3, indefinite integration, exercise 3.1. Now see question number 1, integrate the following with respect to x. So your first question is x cube plus x square minus x plus 1. Let I equal to integral of x cube plus x square minus x plus 1 dx. Now it is in combined form, so we should separate it. Integral of x cube dx plus integral of x square dx minus integral of x dx plus integral of 1 dx. So you should separate each term in terms of integral. Here dx is compulsory, you have to write in each term dx if you are writing in the separate form, and here combined form, so only one time dx. Now see the integration of these terms. So therefore I equals integral of x cube dx. So what is your formula? See this formula, it's very simple formula. For integral of x raised to n dx equal x raised to n plus 1 upon n plus 1, which is already given in the formula list also, and this is your first formula for the integration plus c, where n is not equal to minus 1. मीन्स ये फॉर्मूला -1 के लिए ट्रू नहीं है, बिकॉज -1 plus 1 in the denominator becomes 0 and something upon 0 is not defined. So provided that n is not equal to -1, it is not given in the list, so we have written here n is not equal to -1. Now see, so using this formula for the integration, what is n in the first term? N here 3, n here 3. So integral of x cube dx equal to x raised to 3 plus 1 upon 3 plus 1. So x raised to 3 plus 1, that is x raised to 4 upon 3 plus 1, that is 4. Means ये फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला अपना क्या मिलेगा यहाँ पर? देखो अगर हम यहाँ पर 3 लिखते हैं x रेज टू 3, तो x क्यूब dx इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c. C इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ऐसा क्यों होता है? देखो मैंने फार्मूले में एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन एक्सरसाइज में मैं ये सब टर्म एक्सप्लेन कर देता हूँ. इफ वी टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करें इस पूरे टर्म का, तो हमें x रेज टू n मिलेगा. ये इसका प्रूफ है.
कि हम जब भी किसी भी इंटीग्रल फार्मूले का जो भी रिजल्ट है उस पूरे रिजल्ट को डिफ्रेंशिएट करोगे तो हमें इंटीग्रेशन का टर्म मिलेगा, और जब इंटीग्रेट करोगे तो डेरिवेटिव का टर्म मिलेगा। तो इसीलिए जो डिफ्रेंशिएशन है और इंटीग्रेशन है एक दूसरे के क्या है, ये इनको सपोज कर सकते हो कि एक दूसरे के अपोजिट हैं। कि इसका फार्मूला, जैसे डेरिवेटिव के फार्मूले का जो रिजल्ट है, डेरिवेटिव के फार्मूले का जो रिजल्ट है वो इंटीग्रेशन में एडजस्ट कर सकते हो, और इंटीग्रल फार्मूले का जो रिजल्ट है उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो हमें इंटीग्रेशन का टर्म मिलेगा। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ अ कॉन्स्टेंट टर्म सी, अगर मान लो हम चेक करते हैं तो इसका जीरो हो जाएगा, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट तो n प्लस वन इंटू एक्स रेज टू एन प्लस वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन, तो एन प्लस वन गेट कैंसल, और यहाँ n प्लस वन माइनस वन आएगा, वन वन गेट कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा एक्स रेज टू एन। तो इसका इसीलिए हमें सभी फार्मूले में प्लस सी लिखना पड़ता है, क्योंकि एक कांस्टेंट टर्म, कोई भी कांस्टेंट टर्म है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। तो खैर हमें यहाँ डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन की कंपैरिजन नहीं करनी है, हमें सिर्फ इंटीग्रेट करना है। तो आइए हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल्स एक्स रेज टू थ्री, here x raised to 3 plus 1 upon 3 plus 1 by this formula। देखो 3 plus 1 upon 3 plus 1, so we get x raised to 4 upon 4 in the first term, okay, plus x square dx, अब जहाँ पर n है वहाँ 2 लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x क्यूब बाई 3। यहाँ पर देखो x रेज टू 1 dx है, 1 इसका पावर नथिंग दैट इज 1, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा x रेज टू 2 अपॉन 2, प्लस यहाँ पर देखो 1 dx, तो इंटीग्रल ऑफ 1 dx का फॉर्मूला है x, या इसको अगर हम लोग x रेज टू जीरो लिख दें, अगर इसके प्रूफ के लिए चाहिए तो भी मैं बता देता हूँ कि x रेज टू जीरो डी एक्स रेज टू जीरो क्या होता है 1, तो पुट x इक्वल टू एक्स n इक्वल टू जीरो, तो x रेज टू जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन, एक्स रेज टू वन अपॉन वन दैट इज x, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या है x। तो इंटीग्रल ऑफ 1 dx इक्वल टू x प्लस सी। अब देखो अगर हम सभी टर्म का एक एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट लिखें तो यहाँ पर कांस्टेंट आएगा प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, लेकिन सभी कांस्टेंट हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, टोटल कांस्टेंट मिला करके हमें सिर्फ एक ही कांस्टेंट लिखना है ऑलवेज, प्लस C। तो हम ऐसा नहीं कि जितने टर्म्स हैं, जितने टाइम्स हम इंटीग्रेट कर रहे हैं किसी वन क्वेश्चन के अंदर, उतने टाइम्स हम कांस्टेंट डालेंगे तो उतने कांस्टेंट अलग से लिखने पड़ेंगे, तो ऐसा यहाँ पर नहीं करना है, सभी का मिला करके लास्ट में सिर्फ एक ही कांस्टेंट लिखना है। ये भी मैं कंफर्म कर देना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे भी बोलोगे सर इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स फार्मूले के अकॉर्डिंग इसका भी प्लस सी होना चाहिए, राइट, प्लस C1, तो यहाँ प्लस C1 लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, एक ही क्वेश्चन में 4 कांस्टेंट न लिखते हुए टोटल को मिला करके एक कांस्टेंट यहाँ दे देते हैं, तो x1 C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 इक्वल टू C। तो उसे हमें शो करने की जरूरत नहीं है, दैट वन इज ऑलरेडी अंडरस्टूड, तो सिर्फ एक ही कांस्टेंट लिखना है। ओके, फिर से एक बार शॉर्ट में देख लीजिए कि लेट I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डी एक्स, नाउ सेपरेट इन द इंटीग्रल फॉर्म, so it is equal to integral of x cube dx plus integral of x square dx minus integral of x dx plus integral of 1 dx। नाउ इंटीग्रेट अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, तो हमें क्या करना है, सिंपल सिर्फ n की वैल्यू इस फार्मूले में पुटअप करते जाना है और ये टर्म्स को यहाँ पर सबको एंट्री कर देना है। तो देयरफॉर I इक्वल टू एक्स रेज टू 4/4 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 dx इज x ओनली प्लस अ कांस्टेंट टर्म। तो ये हमने एक्सप्लेनेशन के लिए फार्मूले फिर से दे दिए हैं, और कोई भी फार्मूला अगर यहाँ नहीं लिखा गया है तो यू शुड रेफर फार्मूला लिस्ट, जैसा कि फार्मूला लिस्ट में मैंने टोटल वहाँ पर 32 फार्मूले एक साथ दे दिए हैं। अभी ऐसा नहीं कि इंटीग्रेशन के सभी फार्मूले हो गए हैं, अभी कुछ फार्मूले पेंडिंग हैं जो हम कुछ ऐसा थियरम्स के रूप में यूज़ करेंगे या उनका दूसरे टाइप में फंक्शन के टाइप में यूज़ करेंगे, उसको मैं वापस बताऊँगा बाद में जब भी क्वेश्चन आएगा वहाँ पर। तो नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 अपॉन एक्स होल स्क्वायर, तो दिस इज द इंटीग्रेशन। ये किसका क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का, डेरिवेटिव नहीं है। तो अगर डेरिवेटिव रहता तो हम लोग u इंटू वी अप्लाई करते, तो इसमें u इंटू वी होता है, लेकिन अभी वो फार्मूला मैंने नहीं बताया है और सिर्फ उसको हम दूसरे फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, नॉट इन अलजेब्रिक एंड अलजेब्रिक। तो यहाँ पर फर्स्ट लेट I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 बाई एक्स द होल स्क्वायर इंटू टी एक्स। Therefore I equal to x square into, just expand the bracket,
using a minus b whole square formula. So it is 1 minus 4 upon x plus 4 upon x square into dx. Now simply multiplying x square into the bracket. So therefore it is equal to integral of x square into 1 x square into 4 by x is minus 4x, x square into plus 4x upon x square, 4 upon x square and x square get cancelled, it is plus 4 whole dx. Now separate the terms. So it is equal to integral x square dx minus 4. देखो 4 यहाँ पर कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, तो 4 को हम लोग बाहर भी लिख सकते हैं और अगर नहीं लिखना है तो अंदर भी लिखोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने दोनों साइड से करके दिखा दिया है। अभी आगे के क्वेश्चन में देखोगे तो वहाँ पर इंटीग्रल में कांस्टेंट भी लिखा हुआ है, बाहर भी लिखा हुआ है, तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ अपने को इसका फॉर्मूला लगाने में ध्यान देना है। तो इट इज 4 इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इट इज कांस्टेंट 4 इंटीग्रल ऑफ डी एक्स, या इसको 4 इंटू 1 तो 4 इंटीग्रल 1 डी एक्स भी लिख सकते हो या 1 डी एक्स लिख सकते हो, तो बोथ आर करेक्ट। नाउ यूजिंग सेम फार्मूला, ये फार्मूला फिर से यूज करोगे x रेज टू एन डी एक्स, x रेज टू एन प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 यूजिंग सेम फार्मूला। तो इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स बिकम्स एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 4 एज इट इज इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4 एज इट इज इंटीग्रल ऑफ डी एक्स और 1 डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो देयरफॉर आई इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 2x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ देखो 2 2 जा 4 हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस सी। तो अगर सिंप्लीफाई होता है तो करोगे, अदरवाइज एज इट इज आंसर। नाउ सी थर्ड वन, 3 sec स्क्वायर एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स रूट एक्स माइनस 7। तो सबसे पहले लेट आई फॉर यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन, ऐसा नहीं कि आई ही क्यों लिखा गया, आई फॉर इंटीग्रेशन है तो हम लोग आई से इसको डिनोट कर देते हैं। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 3 sec स्क्वायर एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स रूट एक्स माइनस 7 होल डी एक्स, क्योंकि ये डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ इट इज देखो 3 कांस्टेंट है, 3 इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 4 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स रूट एक्स, तो पावर ऑफ एक्स इज 1 एंड पावर ऑफ रूट एक्स इज हाफ, तो 1 प्लस हाफ बिकम्स 3/2, तो 1 अपॉन एक्स रेज टू 3/2। इसी टर्म को यहाँ पर हमने रेशनल फॉर्म में लिख लिया है कि 1 अपॉन एक्स रेज टू 3/2 इंटू डी एक्स माइनस 7 इंटीग्रल ऑफ डी एक्स। नाउ इंटीग्रेट इज, अब यहाँ पर क्या करना है, हमें सबसे पहले देखना है कि सेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या है। तो अभी अभी फार्मूले में देखे हो कि फार्मूला इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, देखो इट इज इक्वल टू 3 एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स tan एक्स, क्योंकि देखो tan एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan एक्स, एक दूसरे के अपोजिट है। तो इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू tan एक्स माइनस 4 एज इट इज इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इट इज इक्वल टू लॉग एक्स, यहाँ पर लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स भी लिख सकते हो, तो माइनस 4 लॉग एक्स प्लस, अब यहाँ देखो 1 अपॉन एक्स रेज टू 3/2, तो टेकिंग 3/2 इन द न्यूमरेटर, तो दिस विल बी नेगेटिव, तो एक्स रेज टू माइनस 3/2 हो जाएगा। तो एक्स रेज टू माइनस 3/2 होने के बाद हम लोग फिर इसमें से एक्स रेज टू एन का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, एक्स रेज टू माइनस 3/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 3/2 प्लस 1 माइनस 7 इंटीग्रल ऑफ डी एक्स, दैट इज माइनस 7 इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो देयरफॉर आई इक्वल्स 3 tan एक्स माइनस 4 लॉग एक्स। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं, माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 1 इक्वल टू व्हाट, एक्स रेज टू माइनस हाफ, एंड हियर माइनस 3/2 प्लस 1 माइनस हाफ, तो प्लस इंटू माइनस बिकम्स माइनस, और ये माइनस हाफ डिनोमिनेटर में आता है, तो उसका 2 कहाँ पर आ जाएगा, न्यूमरेटर में, तो यहाँ 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो यहाँ पर एक्स रेज टू माइनस हाफ मिलता है अपने को न्यूमरेटर में, तो नेगेटिव पावर है, डाउन करोगे डिनोमिनेटर में तो क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू हाफ, और एक्स रेज टू हाफ को हम लोग रूट एक्स लिख सकते हैं, करेक्ट। तो ये टोटल क्या हो गया, माइनस 2 अपॉन रूट एक्स, दिस इज माइनस 2 अपॉन रूट एक्स माइनस 7x एज इट इज प्लस सी। तो इट्स फाइनल आंसर, रिपीट वंस अगेन, आई इक्वल टू 3 tan एक्स माइनस 4 log एक्स माइनस 2 अपॉन रूट एक्स माइनस 7x प्लस सी, ओवर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ वन, 2x क्यूब माइनस 5x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स रेज टू 5। तो अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, लेट
I equals integral of 2x cube minus 5x plus 3 upon x plus 4 upon x cube whole dx. So integral of this much, now separate it. So therefore I equal to integral of 2x cube dx minus इंटीग्रल ऑफ 5x dx. देखो मैंने कांस्टेंट सब जगह अभी अंदर भी लिखा हूँ, तो ऐसा नहीं कि हम कांस्टेंट को ओनली बाहर ही लिखना है, कहीं पर भी लिखो, लेकिन इसके जो फार्मूले यूज करना है वो करेक्ट यूज करना है. प्लस 3 इज कांस्टेंट टेकन आउट, या अंदर भी लिख सकते थे कि 3 इंटू 3 इंटू इंटीग्रल 1/x dx और इंटीग्रल ऑफ 3/x dx, कोई भी लिखो, बोथ आर करेक्ट. प्लस 4 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1/x⁵ dx. तो देखो अभी हम लोग इस इंटीग्रेशन का स्टार्टिंग जस्ट बेसिक पार्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया है, तो इसके लिए अभी ये पार्ट को हम सेपरेट करके एक एक पार्ट को इंटीग्रेशन यूज करते हैं, dx लिखते हैं, तब फिर इंटीग्रेट करेंगे. लेकिन अभी जब आगे चलते जाओगे तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से अपना अगला स्टेप लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से भी इंटीग्रेट कर सकते हो. ऐसा नहीं कि इसको सेपरेट ही करना है, बट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग यू शुड सेपरेट इट एंड देन अप्लाई द फार्मूला. So therefore I equals integral 2x cube dx is 2 into x raised to 4 upon 4, again using x raised to n dx formula. तो इंटीग्रल ऑफ x raised to n dx x raised to n plus 1 upon n plus 1, तो n क्या है यहाँ पर 3, तो it is equal to 2 into x raised to 3 plus 1 upon 3 plus 1, that is 2 into x raised to 4/4 minus integral of 5x dx 5 into x square upon 2, because integral of x dx is x square upon 2, plus 3 into integral of 1/x dx is log of x plus 4 into, now see this, it is 1 upon x raised to 5, तो 1 upon x raised to 5 को हम लोग क्या करते हैं, x raised to -5 ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -5. तो यूजिंग x raised to n फार्मूला, x raised to -5 plus 1 upon -5 plus 1 plus constant of integration. Now I can be written as here 2 to the 4, क्योंकि यहाँ पर 2 दिया है, तो दिस विल बी x raised to 4/2 minus 5x² upon 2 plus 3 log x, और यहाँ पर देखो -5 plus 1 becomes -4, तो -4 and here +4, so 4 get cancelled, but here plus into minus becomes minus, and result here न्यूमरेटर x raised to -4, हम लोग उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x raised to +4 plus c. Now dear students, one more and important thing, this term in the textbook, this term is given x raised to 4/4, which is wrong answer. Here 2 to the 4, x raised to 4 upon 2 is the correct answer. ये ध्यान देना, यहाँ पर टेक्स्ट बुक में 4 लिखा हुआ डिनोमिनेटर में, जो कि रॉन्ग है. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5. तो अभी बेसिक इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल है और वेरी इजी, तो यू कैन सॉल्व इट वेरी फास्ट. Now see question number 5. 3x cube minus 2x plus 5 upon x root x. तो इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, देखो अगर ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन होता तो वहाँ क्या करते, सिंपली बोलते थे सर वी आर अप्लाइंग हियर u by v रूल और कोशेंट रूल, बट इन इंटीग्रेशन u upon v रूल इज नॉट अप्लीकेबल. u by v रूल नहीं है इंटीग्रेशन में, हमें इसको डिवाइड करना पड़ता है यहाँ पर. तो लेट i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 3x क्यूब माइनस 2x प्लस 5 अपॉन x रूट x इंटू dx. तो x रूट x क्या है, x रेज टू 3 अपॉन 2. देखो x रेज टू 1 और रूट x का हाफ, तो 1 प्लस हाफ क्या हो जाएगा टोटल मिला के पावर का, x रेज टू 3/2. तो इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 3x क्यूब अपॉन x रेज टू 3/2 dx माइनस 2x अपॉन x रेज टू 3/2 dx प्लस 5 अपॉन x रेज टू 3/2 इंटीग्रल ऑफ dx, या इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x रेज टू 3/2, या 1 अपॉन x रेज टू 3/2 इंटू dx भी लिख सकते हो. तो अब यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा, दोनों वेरिएबल सेम है बेस, तो इनका 3 माइनस 3/2, 3 माइनस 3/2 इज 3/2, तो इट इज इक्वल टू 3 इंटीग्रल x रेज टू 3/2 dx. मतलब सभी पावर को ऊपर ले जाके माइनस कर देना है. -2 इंटीग्रल ऑफ x रेज टू, अब यहाँ देखो 1 है, यहाँ 3/2 है, तो 1 माइनस 3/2 माइनस ऑफ dx प्लस अब यहाँ पर 5 इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x रेज टू 3/2, या इसको भी x रेज टू -3/2 dx लिख सकते हो. ठीक है,
ऊपर ले जाएंगे तो -3/2 हो जाएगा। सो इट इज इक्वल टू, नाउ इंटीग्रेट ईच टर्म बाय यूजिंग द फार्मूला x⁴n dx। तो देखो फर्स्ट टर्म में n को क्या लेना है 3/2, सेकंड में n क्या है अपना -12 और थर्ड टर्म में n क्या होगा -3/2। तो चलो अप्लाई कर देते हैं। तो इट इज इक्वल टू 3 इंटू x⁴3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 -2 इंटू x⁻² -12 + 1 अपॉन -12 + 1 प्लस 5 इंटू x⁻³ -3/2 + 1 अपॉन -3/2 + 1 प्लस c दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इट इज इक्वल टू 3 इंटू, अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म देखो 2 × 2 + 3 5/2, तो इट्स रेसिप्रोकल हियर। तो 3 इंटू 2/5 x⁻²5/2 माइनस हाफ प्लस 1 हाफ, तो हाफ का रेसिप्रोकल क्या होगा 2/1, तो -2 इंटू 2 इंटू x⁻², माइनस हाफ प्लस 1 इज हाफ, प्लस 5 इंटू -2, क्योंकि देखो यहाँ पर अपना जो टर्म आने वाला है ये -3/2 + 1 कितना हो जाएगा -हाफ, x⁻² -हाफ। तो x⁻² -हाफ का मतलब डिनोमिनेटर में क्या आएगा x⁻², और x⁻² को क्या लिखते हैं √x, और यहाँ भी -हाफ आता है डिनोमिनेटर में, तो वो हाफ ऊपर आएगा, तो -2 बिकम्स इन द न्यूमरेटर। तो 5 इंटू -2 अपॉन √x, 5 इंटू -2 अपॉन √x प्लस c। नाउ इट कैन बी रिटन एज I इक्वल टू 6/5 इंटू x⁻5/2। देखो 3 2 जा 6 अपॉन 5 x⁻5/2 माइनस 2 2 जा 4 x⁻½ दैट इज 4√x अपॉन 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस -5 इंटू 2 अपॉन √x प्लस c। अब इसका फाइनल आंसर देयरफॉर I इक्वल टू 6/5, x⁻5/2 को हम लोग x² इंटू √x भी लिख सकते हैं, क्योंकि √x का मीनिंग क्या है पावर हाफ, तो 2 + हाफ ही 5/2 होता है। तो ये भी आंसर राइट है और ये भी राइट है। तो देयरफॉर I इक्वल टू 6/5 x² √x माइनस 4√x एज इट इज, माइनस 5 2 जा 10, तो प्लस इंटू माइनस माइनस -10 अपॉन √x प्लस c। तो ये अपने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए फ्रॉम मेन क्वेश्चन 1। तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दिया है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी एग्जाम। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है यहाँ पर, देखो इंटीग्रल ऑफ √x + 1 अपॉन x + √x dx। तो इसमें स्टूडेंट को बहुत परेशानी हो जाती है कभी कभी क्वेश्चन देख करके, अगर जल्दी ध्यान नहीं देते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, और ध्यान दोगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो √x + 1 अपॉन x + √x dx। तो हम सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं क्वेश्चन को कि न्यूमरेटर क्या है √x + 1, डिनोमिनेटर क्या है x + √x, बट दिस x कंटेन्स √x इंटू √x। तो अगर हम लोग इसमें से डिनोमिनेटर में से √x को कॉमन कर लेते हैं तो रिमेनिंग टर्म क्या होगा डिनोमिनेटर में, टेकिंग √x कॉमन इन द डिनोमिनेटर, तो √x कॉमन वी गेट √x + 1, और न्यूमरेटर क्या है √x + 1, तो √x + 1 √x + 1 गेट कैंसल्ड। इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन √x dx, सिर्फ ये √x ही रिमेनिंग रह जाएगा। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलता है इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन √x dx, और इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन √x dx इसकी पावर हम लोग न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो क्या होगा इंटीग्रल ऑफ x⁻² -हाफ dx। ओके, इट इज इक्वल टू x⁻² -हाफ प्लस 1 अपॉन -हाफ प्लस 1 प्लस c। नाउ -हाफ प्लस 1 इज x⁻², हियर -हाफ प्लस 1 इज हाफ, तो ये 2 को ऊपर ले जाओगे रेसिप्रोकल, तो दिस इज इक्वल टू 2√x प्लस c। तो सिंपली यू कैन से इंटीग्रल ऑफ 1/√x dx इक्वल टू 2√x। एक फार्मूला भी है, इसको बाहर रखोगे तो हमारे बहुत सी जगह पर बहुत सी क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज करने के काम आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रल ऑफ, फिर से देख लो, इंटीग्रल ऑफ 1/√x dx इक्वल टू 2√x प्लस c। ये एज ए फार्मूला बाहर भी रख सकते हो कि इंटीग्रल ऑफ 1/√x dx इज 2√x प्लस c। So this question is also very important question. तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।